welcome to Father's Care Online Service. Thank you so much for joining us today. We hope that the word and the worship will be such a blessing to you. Before we get started, we'll just start off with the Lord's Prayer. It should be coming up on your screen very shortly. Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts as we forgive our debtors. And do not lead us into temptation, but deliver us from the evil one. For yours is the kingdom and the power and the glory forever. Amen. Amen. Now we'll get into some worship and some praise. So get your dancing shoes on, get your hands lifted high, and get ready to receive. Hello and welcome to Online Father's Care Church service. We're so glad that you've joined us today. So come on, let's just praise and worship our Father together in this moment right now. Let's praise and worship Him. Thank you, Lord. You're there and you're working in their lives right now. So Lord, I just pray that you'll just move right now.
Thank you, Jesus. मैं आज़ाद हूँ, मैं आज़ाद तेरी लहू से हुआ हूँ, मैं आज़ाद हूँ, मैं आज़ाद तेरी लहू से हुआ हूँ। तू ही है वो जो मुझको छुपाता, तू ही है वो जो मुझको संभालता। देखता हूँ मैं जब तेरी क्रूस की ओर, तू ही है वो जो मुझको बचाता। मैं आज़ाद हूँ, मैं आज़ाद तेरी लहू से हुआ हूँ, मैं आज़ाद हूँ, मैं आज़ाद तेरी लहू से हुआ हूँ। तू ही है वो जो मुझको छुपाता, तू ही है वो जो मुझको संभालता। देखता हूँ मैं जब तेरी क्रूस की ओर, तू ही है वो जो मुझको बचाता। मैं आज़ाद हूँ, मैं आज़ाद तेरी लहू से हुआ हूँ, मैं आज़ाद हूँ, मैं आज़ाद तेरी लहू से हुआ हूँ। Oh, we declare मैं आज़ाद हूँ, मैं आज़ाद तेरी लहू से हुआ हूँ। You welcome in this place. आज़ाद हूँ, मैं आज़ाद तेरी लहू से हुआ हूँ, मैं आज़ाद तेरी लहू से हुआ हूँ, मैं आज़ाद तेरी लहू से हुआ हूँ। Oh, we praise you, Lord. Lord, we just worship you right now. We just exalt your name and lift it on high, God. We thank you that through the blood of Jesus, you set us free. You set us free from every single addiction, every single sickness, every single circumstance, every single problem, Lord. Because you are our waymaker, you're our promise keeper, you're the light in the darkness, you're a miracle worker, God. So Lord, we just right now, we just lift up our praises, we lift up our prayers to you right now, we just call on to you, asking you right now just to intervene and just take over our lives, God. Lord, we worship you, God. Thank you, Lord. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working.
You never stop working. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. Come on, we declare it. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop 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 working. You never, well, we declare that you're never gonna stop. You never stop working. You never stop working. You never stop working. You never stop. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. 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 You are healing every heart. I worship you. I worship you. You are here, renewing every mind. I worship you. I worship you. What about this one? You are here, moving in my mess. I'll still worship you. I worship you. You are here, transforming every life. I worship you. I worship you. I worship you, Lord. You never stop. Come on, just let that be your battle cry right now. That He never stops working. He never stops moving. Although sometimes we can't see it, although sometimes we can't feel it, He's always working, He's always moving, He's always progressing, He's always elevating you. It's just about keeping our faith in Him as we're waiting for Him.
And Lord, right now we just pray for that, for each and every person right now tuning in. That as we wait on your perfect timing, Lord, I pray that we'll just be patient in you. We know that you'll make a way, Lord. If you made a way and you split the Red Sea and you made a way, if you brought life back from the death and made a way, if you turned the water into wine and made a way, you're going to make a way today, Lord. You're going to make a way. No matter what the news has been, no matter what the report has been, no matter what it's been, Lord, you'll still make a way because you are the way maker, Father God. So I just pray, Lord, that right now you'll strengthen your people, Lord. You'll give them courage just to continue, just to keep faith in you, Lord, that you will make a way, Father God, right now. I just pray, Lord, for each and every person, Lord, that your presence is right now just ministering to them right now. Your Holy Spirit is just ministering to them right now, God. I pray, Father, that you would just right now cover us with your precious and holy blood of Jesus. No matter where we go, no matter what we do, Lord, you are always protecting us, guiding us, and leading us, God. I pray that we're in the right place at the right time with the right people, ready to receive your blessing, God. I pray, Lord, you'll be with the rest of this service, God. I pray that you'll be with your speakers. They come to give the word. I pray that it will be a word in season. It will take a lodging place in each and every one of our hearts, Lord, and it will be an encouragement. Lord, I just thank you for all that you are doing right now in your people's life, God. And I pray that you'll continue to do great and mighty things in and through them, Father God, for the extension of your kingdom, God. We love you, we praise you, we worship you, and we lift your name on high, God. We pray this all in your name. Amen. Amen, amen. To God be all the glory. He's doing something right now powerful in your life, and I know he's doing it. So come on, as we move further in the service, get your notepads ready, get your Bibles ready, as we welcome the next person to come give the word. God bless you guys. प्रभु की जय। हम आप सभी को स्वागत करते हैं। खास स्वागत है जो लोग दूर दूर से जुड़े हैं आज सुबह और परमेश्वर के पवित्र और सुंदर वचन को सुनने के लिए। आज हम देखेंगे धर्मशास्त्र से मैथ्यू चैप्टर 7 और वर्स 24 ऑनवर्ड्स। मत्ती के किताब 7वां अध्याय और 24 से लेकर 26-27 तक हम देखेंगे। इसमें इस प्रकार लिखा है, I'll read in English. Therefore, Jesus said, therefore whoever hears these sayings of mine and does them, I will liken him to a wise man who built his house on the rock. And the rain descended, the floods came, and the winds blew and beat on that house, and it did not fall, for it was founded on the rock. But everyone who hears these sayings of mine and does not do them will be like a foolish man who built his house on the sand, and the rain descended, the floods came, winds blew and beat on that house, and it fell, and great was its fall. Let's bow our head in prayer. Father, we say thank you. This is your word, Lord, and this is your people. Touch every life. Talk to them this morning, Lord. As we hear the word, you will deal each one of us, oh God, individually and collectively. Thank you, Father. In Jesus' name we pray and ask. Amen. परमेश्वर का वचन आज कहता है हम लोगों से, जीसस अपने वचन के विषय में कहता है कि जो कोई परमेश्वर का वचन सुनता है वो इंसान उस बुद्धिमान इंसान के समान होता है जो इंसान अपना घर है वो पत्थरों पर बनाता है, उस चट्टान पर बनाता है। परमेश्वर आज इस जगह पर हम मानव जाति से बातें करता है सुबह और कहता है कि मैं उस घर के बात नहीं करता जो घर एक इंसान बनाकर जिसमें अपने जीवन को व्यतीत करता है, उस घरों के बात मैं नहीं करता हूं।
वो कहता है कि मैं तुम्हारे जीवन के विषय में बात करता हूं। मैं उस घर की बात करता हूं कि तुम्हारा जीवन जो है, जो मानव जाति के जीवन जो है, वो किस घर पर तुम आज बने हो। तुम्हारा जो फाउंडेशन है वो कहां पर है, जो नींव है, वो इंसान का नींव जो फाउंडेशन है वो कहां पर है। बहुत से लोग के दिल और दिमाग में बहुत कुछ होता है कि मैं अपना घर ऐसा बनाऊंगा, ऐसी सुंदर जगह पर बनाऊंगा। ये सबका ड्रीम है। नथिंग रॉन्ग विद द ड्रीम, नथिंग रॉन्ग टू हैव दैट ड्रीम, टू हैव अ ब्यूटीफुल हाउस। In fact, every man should desire for the best of the best. लेकिन परमेश्वर जो आज कहता है कि उस घर में रहने के लिए, वो जिंदगी जीने के लिए आज तुम किस में बने हो। बाइबल कहता है कि परमेश्वर का जो वचन है, the word of God, Hebrews 4:12 में कहता है, the word of God is living and powerful and sharper than double-edged sword. Bible also says it pierces even to the division of soul and spirit. परमेश्वर की जो वचन है वो दो धार तलवार है, वो जीता जाता वचन है। यानी कि परमेश्वर के वचन जो है वो जीता जागता है। जब भी तुम उस वचन के बोलते हो, ये समझ लेना कि परमेश्वर की जो ताकत है वो तुम उस ताकत को अपने ऊपर बोलते हो, अपने जीवन के ऊपर बोलते हो। परमेश्वर के वचन जो है रेवलेशन 19:16 में कहता है कि प्रभु यीशु जो है वही है परमेश्वर का वचन। यानी कि परमेश्वर के वचन जब भी तुम पढ़ते हो, उस पर जब तुम मनन करते हो, when you meditate on the word of God, that is Jesus. That's what Bible is trying to tell us this morning. कि परमेश्वर के वचन जो है वो है प्रभु यीशु मसीह। और बाइबल कहता है कि वो इंसान जो अपना जीवन जो है वो उस अपना घर अगर वो पत्थरों पर बनाता है, जो भी कुछ तुम पत्थर के ऊपर बनाते हो उसमें बहुत मेहनत लगता है। जो भी इंसान आप है, जहां से भी सुनते हो, अपना जिंदगी अगर तुम पत्थर के ऊपर एक घर बनाना चाहते हो तो उसमें बहुत मेहनत करना पड़ता है इंसान को। एक एक टुकड़ा तुम काट काट के और एक घर का फाउंडेशन तैयार करते हो। बाइबल कहता है कि परमेश्वर के जो लोग हैं, जो प्रभु यीशु को जानने वाला लोग हैं, वो लोग अगर अपना जीवन प्रभु यीशु में बनाना चाहते हैं, अपना घर स्टाइल अपने जीवन को सजाना जानते हैं, तो वे इंसान को मेहनत बहुत करना पड़ता है। यानी कि परमेश्वर के धर्मशास्त्र जो है, बाइबल जो है, जो उसका वचन जो है, उसमें उसका मनन करना पड़ता है। They have to meditate onto the word of God day and night. बहुत से लोग प्रभु यीशु को अपनाते हैं, वो सोचता है कि उसका जिंदगी बन गया, सब कुछ संभल गया, अब मुझे जरूरत नहीं है बाइबल की। लेकिन मैं आज सुबह बताना चाहता हूं कि परमेश्वर ने कहा, बाइबल कहता है कि go into the world and make disciples. So who are disciples? Disciples are the people who are students of the word, who learn the word day in day out. जो चेला लोग है प्रभु यीशु का, वो वे लोग हैं जो परमेश्वर का वचन दिन और रात जिसमें सुनता है, सीखता है और बीच रात में भी उठकर वो वचन पढ़ता है। इसके मतलब ये है कि तुम अपना जिंदगी जो है, अपना जीवन जो है, वो वचन से तुम भरता है। अपने घर जो है परमेश्वर का मंदिर जो कहलाता है, उसको तुम सजाते हो परमेश्वर के वचन से। रात दिन उस पत्थर की तरह
उसको खोद खोद कर, बाइबल को एक एक वचन निकाल कर अपने जीवन में तुम उसको इस्तेमाल करते हो। ये वो व्यक्ति है जो बुद्धिमान है, बाइबल कहता है, जो अपना घर, अपना जीवन, अपना नींव, फाउंडेशन परमेश्वर के वचन के आधार पे खड़ा होता है। इसके लिए भाइयों बहनों, हम बहुत मेहनत करते हैं। हमारा जो भी लोग है परमेश्वर में है आज, वो रात दिन मेहनत करते हैं, वो वचन पे मजबूत होता है। वो क्यों करता है, मैं बताना चाहता हूं कि उनको ये बात मालूम है जिंदगी में कि आंधी आएगी, तूफान आएगी, दुख और मुसीबत हर एक इंसान के ऊपर आएगा, इससे कोई भी बचा नहीं। बाइबल कहता है जोब 14:1 में, man born of a woman is of few days and with full of problem। जो भी मानव जाति नारी के द्वारा जन्म लिया वो चंद दिनों के मेहमान है और सारी समस्याओं से भरा है। प्यारे दोस्तों, हम में से कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके ऊपर दुख और तकलीफ नहीं आता। ऐसा कोई इंसान नहीं पैदा हुआ जिसके ऊपर कोई मुसीबत नहीं आया। बाइबल कहता है जो भी तुम है, इस बात को तुम जान लो आज कि तुम्हारे ऊपर मुसीबत आएगा। चाहे वो व्यक्ति चर्च में है या नहीं है, चाहे वो व्यक्ति धार्मिक है या अधार्मिक है, जो भी है, बाइबल कहता है कि हर एक इंसान उस दुख और मुसीबत का सामना करेगा एक दिन। The Bible says, Isaiah 59:19, when the enemy comes in like a flood, the Spirit of God will lift a standard against it। धर्मशास्त्र कहता है कि ये आंधी और तूफान, ये बाढ़ की तरह तुम्हारे जीवन में जब आता है, तुम जानते हो जब भी कभी मुसीबत आता है तो एक के बाद एक आते ही रहता है, उसका अंत नहीं होता। कभी जब भी कभी प्रॉब्लम आता है, एक के बाद लगातार आना शुरू होता है। कभी कभी इंसान हैरान हो जाते हैं, वो कहते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, क्यों एक के बाद एक समस्या के ऊपर समस्या आता है। बाइबल कहता है जब भी वो आएगा, मुसीबत एक बाढ़ की तरह आता है, और उससे तुम कैसे बचते हो। इसीलिए वचन दिया है कि जब भी दुश्मन यानी कि शैतान जब तुम्हारे पर वार करता है बाढ़ की तरह, परमेश्वर, जिस परमेश्वर को तुम आज मानते हो, प्रभु यीशु को, क्योंकि तुम अपना जीवन उस चट्टान पर बनाया है, और बाइबल कहता है कि परमेश्वर तुम्हें उस समय, उस दुख और मुसीबत के समय तुम्हें ऊंचा उठाता है, तुम्हें ऊपर उठाता है, अपने गोद में लेता है। कभी कभी तुम सोचता होगा कि ये आंधी तूफान परमेश्वर हटा क्यों नहीं देता, क्योंकि जब बारिश होती है, एक धनवान के घर में भी होता है, एक गरीब के आंगन में भी होता है। बारिश बंद नहीं होती, लेकिन परमेश्वर उस इंसान को ऊंचा दर्जा देता है। तो जहां भी तुम है, सुनते हो, जब भी कभी तुम इस दुख और मुसीबत के बादल के सामना करते हो, जब तुम्हारा आलोचना होता है, जब तुम उस दुख और मुसीबत में गुजरते हो, इस बात को जान ले कि प्रभु यीशु में अगर तुम बना है, उस चट्टान में तुम बना है, तुम्हारा जो फाउंडेशन है वो प्रभु यीशु अगर है, तुम्हारा जीवन का फाउंडेशन प्रभु यीशु है, तो चाहे कुछ भी आए, चाहे आंधी आए, तूफान आए, लेकिन तुम्हारा जो घर है, तुम्हारा जो जीवन है, वो बर्बाद नहीं होगा। वो इसलिए क्योंकि तुम
प्रभु यीशु में बना है। और बाइबल कहता है कि प्रभु यीशु आइज़ाया 28:16 में कहता है, जीसस इज अ श्योर फाउंडेशन, इज अ प्रेशियस कॉर्नरस्टोन। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जो है वो एक ऐसा नींव है, एक ऐसा फाउंडेशन है जो कभी हिल नहीं सकता और जिसका जीवन उसमें बना रहता है। बाइबल कहता है कि आंधी आएगी, तूफान आएगी, लेकिन कुछ भी उस घर को, उस इंसान को हिला नहीं सकता। वो हिला नहीं सकता, गिराने की बात बहुत दूर है, वो हिला नहीं सकता, क्योंकि प्रभु यीशु में बना है वो व्यक्ति के जीवन प्रभु यीशु के वचन में बना है। वो वचन जो दो धार तलवार है, वो वचन जिस वचन में ताकत है, वो वचन जो जीवित है आज, वो वचन जो प्रबल है, क्योंकि प्रभु यीशु का जो वचन है वो दो धार तलवार है प्यारे दोस्तों। और परमेश्वर का वचन कहता है कि जो कोई उसमें बना रहता है, आंधी और तूफान का सामना वो करता है। Daniel 11:32 says, people that know their God shall be strong and will do great exploits. कि लोग जो प्रभु यीशु को जानता है, जो उसमें बना है, वो अद्भुत और आश्चर्य कामों को करेगा। वो बहुत ताकतवर लोग होते हैं, देखने में से तुम पहचान नहीं पाओगे कि ये ताकतवर लोग हैं। देखने में शायद वो कमजोर लगता हो, लेकिन उसका परमेश्वर जो है वो बहुत ताकतवर है और बहुत महान है और बहुत बड़ा है। क्योंकि वो व्यक्ति का जीवन जो है वो प्रभु यीशु का जो चट्टान है, जो पत्थर है, उस चट्टान में बना है। और जो घर चट्टान में बनता है वो घर कभी गिराया नहीं जाता। बाइबल कहता है, कंपेयर करता है वर्स 26 में, but everyone who hears these sayings of mine and does not do them will be like a foolish man who built his house on the sand. And the rain descended, the floods came, and the winds blew and beat on that house, and it fell, and great was its fall. यहाँ पर बाइबल में जीसस दो तरह की लोग, दो तरह की विचार को कंपेयर करता है, तुलना करता है एक दूसरे से, कि दोनों व्यक्ति सुनता है परमेश्वर का वचन। एक बुद्धिमान व्यक्ति और वो व्यक्ति जो बाइबल कहता है जो बेवकूफ की तरह काम करता है। दोनों व्यक्ति परमेश्वर का वचन को सुनता है। एक परमेश्वर के वचन को सुनकर और अपना जीवन में काम में लाता है, वचन के आधार पे चलना शुरू करता है। और दूसरा व्यक्ति जो है, बाइबल कहता है, ये भी सुनता है, लेकिन इसके लिए एक मजाक होता है परमेश्वर का वचन, और ये सब कुछ अपने जीवन में आसानी से प्राप्त करना चाहता है। अगर घर बनाना है वो भी आसानी से चाहता है ये सब हो जाए। जिंदगी में रातों रात धनवान बनने की कोशिश करता है व्यक्ति, अपने जीवन में सब कुछ हासिल करना चाहता, लेकिन बिना कोई कठिन परिश्रम के द्वारा। वो ये सोचता है कि ये सब कुछ आसानी से मिल सकता है। बिना मेहनत से बस घर बैठे बैठे चाहता है कि ये मुझे मिले। बाइबल कहता है ऐसा व्यक्ति वो होता है जो बालू के रेत में अपना घर बनाता है। बालू के रेत में घर बनाने के लिए तुम्हें कोई मेहनत नहीं करने की जरूरत है। जहां भी है तुम वहां से उठा और 4-5 लकड़ी लिया और गड्ढा खोद के अपना घर बना लिया, और बहुत फास्ट बनता है ये घर। ऐसे लोग बहुत फास्ट बढ़ते हैं क्योंकि ये मेहनत नहीं करना चाहते।
ये किसी काम में मेहनत नहीं करना चाहते, सब कुछ घर बैठे और सब कुछ प्राप्त करना चाहता है। बाइबल कहता है कि ये इंसान जो है, जो बालू के रेत में बनाया घर, वो बहुत फास्ट बनता है। जितना फास्ट वो बनता है उतना ही फास्ट वो घर, जब आंधी आती है, तूफान आता है, वो घर छितरा जाता है। प्यारे दोस्तों, भाइयों बहनों, जहां से भी तुम सुनते हो, बाइबल कहता है कि जो घर, जो जीवन प्रभु यीशु मसीह के वचन में नहीं है, वो घर उस व्यक्ति के घर के समान है। जब दुख और मुसीबत के बादल छाते हैं तो ये घर छितरा जाता है, ये इंसान बिखर जाता है, इसका जीवन खत्म हो जाता है। बाइबल कहता है कि जो इंसान प्रभु यीशु के खोजी बनते हैं, जो इंसान प्रभु यीशु के वचन पर दिन रात मनन करता है, जो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के वचन में चलना कोशिश करता है और परमेश्वर की एक चेला बनता है और दूसरों को यह सिखाता है कि प्रभु यीशु कौन है, प्रभु यीशु कितना प्यारा है, दूसरों को यह समझाता है कि प्रभु की यीशु के वचन कहता क्या है एक दूसरे को। जब इंसान उस रास्ते को चुनते हैं, वो दिन प्रतिदिन प्रभु यीशु में बहुत मजबूत बनता है। चाहे जो भी वो इंसान हो, प्रभु यीशु में अगर मजबूत बनता है वचन के द्वारा, उस वचन को अपने जीवन में लाता है, उस वचन पर चलना शुरू करता है और प्रभु यीशु की तरह अद्भुत और आश्चर्य काम उसके जीवन से होना शुरू होता है। वो खुद घबराता है कि ऐसे कैसे होता मेरे जीवन में। जो कल तक वो नहीं सोचा वो हासिल करता है, वो प्राप्त करता अपने जीवन में। बाइबल सेज नाउ he is able to do exceedingly abundantly above all that you think or ask, according to the power that works inside of us. जो ताकत, जो पावर हमारे अंदर में जो है, वो सिर्फ परमेश्वर के वचन से आता है। तुम कई सालों से चर्च में होगा, लेकिन अगर तुम्हारे जीवन में वचन नहीं है, तुम परमेश्वर के वचन ना पढ़ते हो, ना सुनते हो और ना उसको अमल करते हो और ना उस पर चलते हो, तो तुम सिर्फ एक सुनने वाला व्यक्ति बनता है। एक सुनने वाला व्यक्ति बहुत खतरनाक होता है, चाहे जहां पर भी हो। वो जो कुछ भी सुना, जो कुछ भी अपने ढंग से समझा और उस पर वो चल पड़ेगा। लेकिन जो व्यक्ति परमेश्वर के वचन सुनता है और उसको सीखता है हर रोज और अपन जिंदगी में उस वचन को काम में लाता है, वो बहुत ताकतवर व्यक्ति होता है। तुम्हारे अंदर में वो ताकत बढ़ता है। You become a very powerful man of God. क्योंकि बाइबल कहता है तुम्हारे सोचने से ज्यादा, तुम्हारे मांगने से कई ज्यादा हमारा प्रभु यीशु तुम्हें दे सकता है। He is able to do exceedingly abundantly above all that we ask or think. The main part is according to the power that works inside of us. कि तुम्हारे अंदर में कौन सा ताकत कार्य करता है आज? क्या परमेश्वर के वचन जीवित है? क्या परमेश्वर के वचन तुम्हारे अंदर में धैर्यधारी होता है? क्या परमेश्वर के वचन के अनुसार तुम चलते हो? बहुत से लोग इसी जगह पर आकर दूर हो जाता है परमेश्वर से, क्योंकि प्रभु का जो वचन है उसमें अमल करना, उस पर चलना, उस वचन को साथ साथ लेकर चलना एक अलग अंदाज है,
दोस्तों, क्योंकि परमेश्वर के वचन जो है वो जीवित वचन है। जहां भी उसके नाम तुम लेते हो, जब वचन बीच में लाते हो, तो हर एक सूखी भूमि पर यह समझना कि तुम अपने मुंह से पानी छोड़ते हो, क्योंकि वचन तुम्हारे अंदर से जब आता है, परमेश्वर का जीवित वचन जो दोधार तलवार है, वो वचन बहुत से अद्भुत और आश्चर्य काम को करेगा। चाहे तुम उस वचन को किसी के जीवन में बोलते हो, अपने समस्या के ऊपर बोलते हो, जो भी सिचुएशन से तुम गुजरते हैं, जिस पर तुम प्रभु यीशु का वचन बोलोगे, तुम बहुत से भारी बदलाव को अपन जीवन में तुम देखोगे। हालेलुया, प्राइज द गुड लॉर्ड। इस समय थोड़ी देर के लिए हम सोचें कि कई सालों से हम परमेश्वर के वचन सुनते हैं। शायद तुमने अपने पड़ोस में सुना होगा, शायद तुम जब संडे स्कूल में था तब सुना होगा। थोड़ी देर के लिए सोचो, कभी तुम परमेश्वर के कोई भी वचन सीखा है बाय हार्ट? परमेश्वर के वचन तुम्हारे अंदर में क्या है? तुम जानते हो परमेश्वर के ढूंढने के लिए इंसान कहां से कहां जाते हैं। एक देश से दूसरा देश तक जाते हैं, पर प्रभु के ढूंढ में, खोज में, कि हमें प्रभु मिल जाए, हमें परमेश्वर मिल जाए। लेकिन यह बात पता नहीं होता बहुत लोगों को कि परमेश्वर, ये जो वचन है, यही है परमेश्वर। ये जो वचन हम पढ़ते हैं, ये जो वचन आप लोगों ने हर एक लोग देखा होगा, बाइबल हम लेकर चलते हैं। आजकल तो सबके मोबाइल फोन पे है। यही है जीता जागता परमेश्वर। परमेश्वर की जो वचन है वही है परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर ने कहा यूहन्ना 1:1 में, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर है। John 1:1 says, in the beginning was the word, and the word was with God, and the word was God. Everything that you see is made is only through that word. सारी दुनिया में, पृथ्वी के ऊपर जो कुछ भी बना, बाइबल कहता है उस वचन के द्वारा बना, और कोई चीज से नहीं, सिर्फ वचन से पूरी दुनिया बना है। वही है परमेश्वर, और वही वचन आज तुम्हें और हमें दी गई। आज वही वचन से लेकर हम चलते हैं अपने जीवन को। आज हर एक सफलता के पीछे वो परमेश्वर के पवित्र और बहुमूल्य वचन है। हर एक कामयाबी के पीछे प्रभु यीशु का सुंदर और पवित्र और बहुमूल्य वचन है। हर एक जगह पर जो कुछ हम प्राप्त करते हैं, सिर्फ परमेश्वर और परमेश्वर के पवित्र वचन जो जीवित है। आज उसी वचन के विषय में परमेश्वर कहता है कि तुम आज इसके चेला बन जाओ। इस वचन को तुम पढ़कर और इस पर मनन करो, और ये वचन हर एक दुख, तकलीफ और मुसीबत के समस्या में आप इस वचन को तुम बोलो। अपने जुबान से वचन को बोलो। कई बार हम लोग के ऊपर प्रॉब्लम कुछ भी होता है, हम दौड़ कर जाते अपने दोस्तों तक और बाहर लोग तक अपना प्रॉब्लम शेयर करने के लिए। काउंसलर्स के पास जाते हैं प्रॉब्लम शेयर करने के लिए। तुम्हें पता है कि ये जो वचन हम ये जो लोग दौड़ कर जाते हैं, अगर वो परमेश्वर के वचन में ध्यान दे, तो परमेश्वर खुद ब खुद आपका एक सहायक बनेगा और एक मसीहा जो तुम्हारे हर एक समस्या को दूर करेगा। वो सिर्फ वचन के द्वारा और कुछ भी नहीं। दोस्तों, मैं चाहता हूं कि इस समय मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करें कि ये वचन
तुम्हारे अंदर में दहेदारी हो, तुम्हारे मन में ये परमेश्वर का पवित्र वचन बैठे, कि तुम इस वचन को समझ सको कि इसके गहराई, इसका कितना ताकतवर वचन है। ये दुनिया की हर एक ताकत से बड़ा ताकत है परमेश्वर का पवित्र वचन। तो क्यों ना इस समय प्यारे दोस्तों, आप जहां भी हैं, अपने सर झुकाए, आंख को बंद करें जबकि हम प्रार्थना करते हैं। हे महान परमेश्वर, तुम्हारा पवित्र वचन तुम्हारे लोग तक पहुंचाया प्रभु। हर एक पर तुम्हारी आशीष हो, तुम्हारी अनुग्रह हो। परमेश्वर, हम प्रार्थना करते कि हर एक इंसान जितनों ने भी तुम्हारा वचन को सुना है, ये वचन उन लोगों के जीवन में दहेदारी हो प्रभु। एक समझ आ सके कि हे मेरे परमेश्वर, तुम्हारा जो पवित्र वचन है वो ताकतवर है। हे प्रभु यीशु, इंसान के विश्वास किसी इंसान पर ना रहे प्रभु, सिर्फ तुम्हारे पवित्र वचन के ऊपर रहे, क्योंकि वही एक सहायता है। धन्यवाद मुक्तिदाता यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हम आप सभी को धन्यवाद देते इस समय के लिए, और इसी तरह आप जुड़े रहें जैसे कि सभा में हम आगे बढ़ते हैं। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। The splendor of the King, clothed in majesty, let all the earth rejoice, let all the earth rejoice. He wraps himself in light, and darkness tries to hide, and trembles at his voice, and trembles at his voice. How great is our God? Sing with me,
Thank you for tuning in for our Sunday service online. Awesome message. As we are ending our service today, I encourage you to say the word of declaration together. So there is so much power in this declaration. So let's say the word of declaration for 2020. 2020 is my year of new wine. I am living a surrendered life to God-given vision, wisdom, and purpose. I am His vessel, a new wineskin to receive, conceive, and give birth to the new He wants to do in and through me. He is enlarging my capacity to receive all that He has in store for me. Jesus, pour this new wine out of me that will draw souls from the four corners of this earth into your kingdom. Teach me to number my days that I may gain a heart of wisdom. Help me to live, love, and serve like you, Jesus. That is no longer I live, but Christ lives in me. My body is your temple of the Holy Spirit. Not my will, but yours be done. Thank you, Lord, that you have crowned 2020 with your goodness, and your path for me is dripping with an overflow of your abundance. 2020 marks a new era, a new dimension, propelling me to the fulfillment of my destiny. This is my year. In Jesus' name, and everybody said, Amen, Amen, and Amen. You can get connected to us with all the information that's coming shortly on the screen for you. We will tune in next week at the same time. May the Lord bless you richly.